Inception with the everlasting name of Allah the Almighty, who knows the secrets of our hearts. Dear viewers, Assalamu alaikum. As you know very well, here is in the front of you Mr. Shahzad Ali, and you are watching Shahzad Official. So we are having an important topic, which is active and passive voice. Active and passive voice. Active and passive voice. Today I'm going to make you understand about the active and passive voice. Firstly, if you want to understand the active and passive voice, so for that you should understand 4 rules of active and passive voice. So there are 4 rules. There are 4 rules to convert a sentence from active to passive. To convert a sentence from active to passive, there are 4 rules to be understand. Rule number first ये है कि subject will always be exchanged with the object. Subject is always exchanged. Subject is always exchanged with the object. Subject is always exchanged with object. Subject is always exchanged with object. Next, rule number 2. Rule number 2 says always third form of verb is used. As I told you in previous lecture that there are 4 forms of the verb. First form, second form, third form. If there is a gone, second form is if there is go. Second form is went off, go. Third is gone. Fourth is going. So there are 4 forms of every verb. So always in passive voice their third form of verb is used. Means to convert active to passive. In active there is any form is there. You have to use in passive third form. Always use third form. Always third form of verb is used. Rule number 3. Rule number 3 is by is used. Where necessary. By is used where necessary. By वहां यूज किया जाता है जहां पर जरूरत होती है. तो some sentences are like that which are non specific, which are undefinite, जिनको हम explain नहीं कर सकते, तो उनमें by इस्तेमाल नहीं होता passive में. तो जो और examples हैं, जो और sentence हैं, उनमें by इस्तेमाल होता है. So by is used as a necessary where it will be needed. The fourth one rule to convert from active to passive is that present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous tenses can't be changed into passive voice. So these are the sentences which cannot be changed into passive voice. कौन से sentences? Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. These sentences cannot be changed into passive voice. तो इनमें से जो भी एक्टिव में होगा तो वो पैसिव में चेंज नहीं हो सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज एक ही सेंटेंस में 2 एक जैसे वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकते. एक ही सेंटेंस में 2 एक जैसे वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकते.
So these are the sentences which cannot be changed into passive voice. These are the sentences which cannot be changed into passive voice. So rule number, I'm going to revise these rules to convert active into passive. Means आपको अगर active से passive में convert करना है तो आपने ये rule follow करने होंगे. Rule number 1 कि subject is always exchanged with object. Subject is always exchanged with object. We are having an example. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. She teaches me. She teaches me. एग्जांपल है. She teaches me. अब रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सचेंज विद ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सचेंज विद ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सचेंज विद ऑब्जेक्ट. She teaches me. सब्जेक्ट she, ऑब्जेक्ट me. अब me हो जाएगा सब्जेक्ट, she हो जाएगा ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सचेंज विद ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. कैसे? अब यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट मी. मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई. आई. उसके बाद पैसिव में है टेंस. यहां पर आएगा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है. तो प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव में फार्मूला जो होता है उसमें इज एम आर लगता है. आई के साथ क्या लगेगा? एम. आई एम. टीच. टीच. सेकंड रूल क्या कहता है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. ऑलवेज मेन वर्ब इज यूज्ड which will be third form of verb. Means here main verb is teach. What is the third form of teach? Teach. The third form of teach is taught. I am taught by. Here by is used because ये नॉन स्पेसिफिक और अनडिफिनाइड नहीं है, इंडेफिनाइट नहीं है, तो इसमें हम बाय इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम टोल्ड बाय शी. शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी यहां पर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल. ऑलवेज एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्ट. शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर. शी टीच मी. आई एम टोल्ड बाय हर. दिस इज इन पैसिव वॉइस. दिस इज इन एक्टिव वॉइस. मींस वी कैन से दिस इज इन एक्टिव वॉइस and this is in passive voice. Very simple way to make you understand about the active and passive voice. ये 4 rules हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे to convert active into passive. मीन्स अगर आपने एक्टिव सेंटेंस है उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ये 4 रूल्स जो है आपको फॉलो करने होंगे. द फर्स्ट वेरी फर्स्ट रूल इज दैट ऑलवेज सब्जेक्ट इज एक्सचेंज विद ऑब्जेक्ट. And third form of verb is used in every sentence. The next is by is used where necessary. By is used where necessary. And the last, past perfect continuous, future perfect continuous, present perfect continuous, and future continuous tenses. These are the 4 tenses which cannot be converted into passive voice. क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकते? बिकॉज एक ही जगह पर 2 वर्ब्स नहीं लगाए जा सकते. जैसे कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आता है, फ्यूचर में भी हमें बीन लगाना है, तो बीन सेंटेंस गलत हो जाएगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस इन पैसिव वॉइस. प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस में. क्या हम प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में कैसे लिखें? तो प्रेजेंट सिंपल का पहले तो एक्टिव वॉइस में फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये किस में होता है? एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस में ये फार्मूला होता है. और पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट विल ऑलवेज एक्सचेंज विद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर. ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब्स थर्ड फॉर्म.
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सॉरी प्लस सब्जेक्ट। तो ये किसमें होगा? पैसिव वॉइस में फार्मूला। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसमें हुआ? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। सो लेट्स सी द एग्जांपल के एग्जांपल क्या होते हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। ये एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। पहले तो आपको जानना है सेंटेंस है किसमें, पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में, फिर ही आपको कन्वर्ट करना होगा। अगर पैसिव में होगा तो एक्टिव में, एक्टिव में होगा तो पैसिव में। वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इंग्लिश के साथ इज लगेगा। इंग्लिश इज स्पोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? स्पोकन बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। तो इसी तरह इसका नेगेटिव क्या होगा? इंग्लिश इज नॉट, और वी कैन से इजंट स्पोकन बाय अस। ये हो गया इसका नेगेटिव। किसमें है ये? पैसिव वॉइस में। ये पॉजिटिव है, ये पैसिव वॉइस में नेगेटिव है। तो ये हो गया नेगेटिव में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब हम अगर कोई नेगेटिव में सेंटेंस देता है तो उसे नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर इंटरोगेटिव में देता है एक्टिव में, तो इंटरोगेटिव पैसिव में कैसे करें वो भी आपको बताऊंगा। अगर ये इंटरोगेटिव में दिया होता कैसे कि डू वी स्पीक इंग्लिश, तो हम कैसे चेंज करते हैं? इज आ जाएगा बाहर, इज इंग्लिश स्पोकन बाय अस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा? इज इंग्लिश स्पोकन बाय अस। इज इंग्लिश नॉट, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो इज इंग्लिश नॉट ये किसमें है? पैसिव वॉइस में। तो ये सेंटेंसेस है, देख ले। इसका पहले फार्मूला देखें। एक्टिव में फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को ही कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका पैसिव वॉइस में फार्मूला क्या था? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट देयर इज बाय, there is by. After that, in the formula there is by. In the formula there is by. English is, let's see the example. We speak English. English is spoken by us. English, according to formula, its object is exchanged with subject. English is spoken by us. English isn't spoken by us. Is English spoken by us? Is English not spoken by us? So these are the in present simple tense. In present simple tense, according to the formula, this is positive. First one is positive, second one negative, third one interrogative and interrogative negative. तो ये क्या था? ये था present simple tense. Now I'll discuss about the present continuous. Present continuous tense in passive voice. कि एक्टिव में जो present continuous का सेंटेंस होता है उसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो कैसे?
अगर जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक्टिव वॉइस में पहले तो सेंटेंस देखे एक्टिव वॉइस का, मैंने आपको फार्मूला पढ़ा दिया है। वी सेम सेंटेंस देते हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो पैसिव वॉइस का फार्मूला देखें, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। हमेशा कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, बीइंग क्योंकि फोर्थ फॉर्म वर्ब होनी चाहिए, इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पीपी, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा फार्मूला इसका, प्लस सब्जेक्ट किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंग्लिश क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाना है। इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इंग्लिश, इंग्लिश के बाद क्या आएगा? इज है तो इज, इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय, वी है तो यहाँ पर अस हो जाएगा। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय अस, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय अस। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको समझा दिया था एक्टिव वॉइस में, और इसका एग्जांपल है वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। ये एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? पैसिव वॉइस में सबसे पहले फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पीपी मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा पैसिव वॉइस में। इसका फार्मूला क्या, कौन सा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पीपी मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद इसका एग्जांपल देखें जो ऊपर दिया था, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय अस, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय अस। ये होगा इसका पैसिव वॉइस में। ये किस में था? एक्टिव वॉइस में। ये किस में? पैसिव वॉइस में। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? यहां पर आ जाएगा इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय अस। ये किस में हुआ? पैसिव वॉइस में। कौन सा? नेगेटिव, नेगेटिव ये हो गया। इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय अस। इंटरोगेटिव कैसे होगा? इज इंग्लिश, इज इंग्लिश नॉट बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय अस। ये हो गया पैसिव वॉइस में। किसमें? इंटरोगेटिव में। In the last there will be question mark in interrogative. लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे होगा? Is English not being, is English not being spoken by us. ये भी हो गया पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। और these are the four sentences means first positive, negative, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट, पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है जो दिया हुआ था। फिर अगर नेगेटिव में ये दिया हुआ तो नेगेटिव में ऐसे कन्वर्ट होगा, इंटरोगेटिव में ऐसे होगा, इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय अस। इन इंटरोगेटिव नेगेटिव इट्स इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन बाय अस। So this is present continuous tense. In revision I want to say here that first of all you have to remember the formula in passive voice, because active voice these are too easy, and passive voice to convert the passive voice there are four rules which I have told you. In the first, that the object is always convert with the exchange with the subject, subject is always exchanged with the object in the law. And second rule, that was always third form of verb is used, and third one which is by is used as an adjunct means where necessary. In the third there was fourth that past perfect continuous, present perfect continuous, and future perfect continuous and future continuous.
cannot be converted into passive voice. Thank you very much. Have a nice day.